ବଞ୍ଚିବା ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ମଣିଷ ଏହି ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାନବ ସମାଜ କୃଷି ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ବାସସ୍ଥାନର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାସସ୍ଥାନ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଚାଷ ଜମି କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜମିରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଧିକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିହନର ବ୍ୟବହାର ଠାରୁ ଫସଲ ଆମଦାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବସବାସ କରି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପରିଯୋଜନା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଜୀବିକା ମିଶନ ଓ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ମିଶନ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମହିଳା କିଷାନ ସଶକ୍ତିକରଣ ପରିଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସହଭାଗିତା ଭିତ୍ତିରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 9 ଗୋଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀମାନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଲିମ ଦେଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ। ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭୂମି ରୂପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ଏହିସବୁ ଭୂମିର ପରିସ୍ଥିତି, ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଧାନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫସଲ। ଏହାଛଡ଼ା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାନାଯୁକ୍ତ ଫସଲ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଜଳବାୟୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସାଧାରଣତଃ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଖରିଫ ଋତୁରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଭୃତି ଏହି ସମୟର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରବି ଋତୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ନଥିବାରୁ ଜଳସେଚନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ସମୟରେ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମାଧ୍ୟମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଚାଷୀମାନେ କିପରି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯାଇଛି। ମାଟିର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମାଟିର ଅମ୍ଳତ୍ୱକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଚୂନ ଓ କାଗଜ କଳ ମଇଳା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଏକ ଜାଗାରୁ 4 କୋଣ ମଝି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ମାଟି ଅଧା କିଲୋ ନିଆଯାଉଛି। ନିଆଯାଇକି ତାକୁ ମିଶାମିଶି କରି ତାକେ ପୁରା ସନାସନକୁ 4 ଭାଗ କରାଯାଉଛି। 4 ଭାଗ କରାଯାଇ କରି ତାକେ ଯାହା ଅଧା କିଲୋ ରହୁଛି ତାକେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ପଠାଯାଉଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଫସଲ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। କେଉଁ ଫସଲ କେଉଁ ସମୟରେ ଲଗାଯିବ, କେତେ ଦିନ ପରେ ଖତ ଏବଂ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ତଥା ଫସଲ ଅମଳର ସମୟ ଉପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମଞ୍ଜିକୁ ଜମିରେ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତଳି ପଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମଞ୍ଜି ଆନୁ ଆର୍ ତାକେ ତଲି ପକାଇନୁ ଆର୍ ମାଟି ହଲ୍ ଫାନ୍· କରି ମାଟି ଜୁଥୁନୁ ତାପରେ ଦୁହୁରି ମାରନୁ ଆରୁ ତଲି ଘିଚି କରି ତାକେ ପାଣି ଦି କରି ರೂಪನು। ଚାଷୀମାନେ ପଟାଳି କରି ସେଥିରେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରି ବୀଜ ରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହନ ବିଶୋଧନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିହନକୁ ଆମେ ଆଣିବା, ବିହନକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା, ତାର ଅଗାଡ଼ି ଅଂଶକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା।
कखारु मंजी को आमे बतुरे रखिबा तापरे आमे विशोधन करबा। सर्वप्रथमे आमे गोटे लिटर पानी आनिबा। पानी देहरे 100 ग्राम गोबर को गोटे कपड़ा रे सरू कपड़ा रे ऊपर रखिकरी ताकू हाथ रे हलई दबा। तार खदड़ा अंश कपड़ा रे लागिबो। ता सहित आमे गाई परिस्रा दबा 100 मिलीग्राम। तापरे आमे क्षीर दबा 50 मिलीग्राम, हलदी गुंड दबा 5 ग्राम आउ खाइबा चून दबा 5 ग्राम। एमती आमे से जिनिस को संग्रह कर साला परे गोटे जगार ताकू गोलई दबा। से मंजी को आनी सेठी विशोधन करदबा। 5 रु 10 मिनिट भितर आमर से बिहन टिकी बुड़ी रही सारा परे ताकू आमे नेकी छाई जगार सुखे दबा। छाई जगार सुखेला परे ताकू हाथ रे जेमती आमर पानी अंश न लागिबो, मंजीटी खसी जाउथिबो तळुकू, से मंजी को नेकी आमे गछ रोपण करबा। चारा गुड़िक उपयुक्त होला परे ताकू नहीं पूर्वर प्रस्तुत करा जायथिबा जमी रे रोपण करा जाउछि। पनीपरिबा चाष करबा पूर्वरु चाष जमी को भल भाबरे चाष करबा को पड़िଥାଏ। या परे माटी को संपूर्ण भाबरे गुंड करी सेथिरे मई दिया जिबा द्वारा माटी समतल होइଥାଏ। माट के प्रथमे कुड़ा कोसा करूछु, हल रे ताके 2-4 थर करी करी से माट के गुंड करूछु। गुंड करी करी ताके दुहरी मने मारुछु। दुहरी मारी कर से दुहरी मन के इदा जगोछु। चाष जमी को संपूर्ण भाबरे प्रस्तुत कला परे तळीपटीरू चारा गुड़िक आनी जमी रे रोपण करा जायଥାଏ। चारा गुड़िकर रोपण करबा समय रे या मध्यरे सठिक व्यवधान रखिबा पई चाषी मानकु परामर्श दिया जायछि। या द्वारा गछ गुड़िक सठिक भाबरे सूर्यालोक पाई हृष्टपुष्ट होई बढ़िଥାଏ। गछ गुड़िक सामान्य बढ़िला परे पोड़ा खोसार आवश्यकता होइଥାଏ। या द्वारा गछ मूल थिबा अनाबना घास इत्यादि को बाहर कर दिया जाए। कुड़ा होसे गछटा उर्वर हबो, माटीटा टाणुआ हो जाइछला। गछ उर्वर हेले आज्ञा से सारटा खत रस टाणी करी गछटा उर्वर आसबा, पहाड़टा तले खसबा, माटी हल्का हबा। माध्यम फाउंडेशन तरफरु उत्तम फसल उत्पादन करबा पई चाषी मानकु जैविक खत जीवामृत प्रस्तुति करबा पई तालीम मान देवा फल चाषी माने यह प्रस्तुत करुछंती। गोबर 10 केजी, माटी 1 केजी, डाली गुंड 1 केजी, तार गुड़ 1 केजी आ बहुमूत्र होची 10 लिटर। ताकू मिसई कर रखुछु, गुली कर रखी करी 2 दिन परे चाष लगाले चाष रे दउ। फलत चाषी माने कम खर्च रे उत्पादन को बढ़ेबा सह स्थानीय संबलर सुविनियोग करि पारुछंती। यार सुप्रभाव परिवेश उपरे पड़िबा सह परिवेश संतुलन हो पारुछि। सेपरि रोग और पोकदाउरु फसल को रक्षा करबा पई जैविक प्रणाली रे औषध तैयारी करबा पई शिक्षा दिया जाउछि। आम हांडी खत आम पनीपरिया हो कि धान रे हो आम औषध भाव काम करसु। हांडी खत तैयारी करबा लगी 5 लिटर गाई परिस्रा आ करन पत्र 1 किलो, लीम पत्र 1 किलो आ अरक पत्र 1 किलो, गाई गोबर 1 किलो आ गुड़ 50 ग्राम ये लगी सामग्री दरकार। पत्र के सब काटिकिना से पकई दूचु, तापर गाई परिस्रा से पकई दूचु, गोबर गुड़ा पकई देकिना 7 दिन जाए गोटे छाई जगार रखी दिन को गोटे थर ताकू आम काठी माध्यम रे आम घांटुचु। ताकू 7 दिन पर आम तापर ताकू गोटे बाल्टी आनिकिना ताकू छाणुचु। छाणिकिना जो रस तार बाहरुची से रस रे आम परिबा गछर साइज देखिकिना छोट साइज को 60 गुण पानी और मध्यम गछ को 50 गुण पानी और ताटू टिके बड़ गछ को 40 गुण पानी मिसिकिना सेतिरे सिंचन करूछु। चाषी माने यह को तैयारी करी निज जमी रे प्रयोग करी कम खर्च रे निजर फसल को रोगपोक दाउरु रक्षा कर पारुछंती। आगे जहाँ सरकारी खत आनी करी आमे व्यवहार करूथिलु, आमर पैसा खर्च होउथिला, आमर धान मन के डीटीएच लागुथिला, चाषबास बेसी खणे क्षति होउथिला। आज्ञा मने आमके आसी करी बुझाले जे तमे हाणी खंत बनाह
आरो धान चाउल ने भी देव तुम पनीपरिवार ने सबू देव तुम चाषटा नहीं से केनु भल हेबा बोलिक कहले से खत को आम व्यवहार करुचु आर आम निजे भी बनाऊचु चाषबास ने आम दौचु आर भल उन्नति होचे पनीपरिवार खावा लगी भी भल लगुचे मीठा लगुचे। हांडी खत से आमर चाष कले टी माटीर उर्वरता टी अधिक हुए आउ रासायनिक सारे माटी टी टाण कर कठिन हेल्ला तापर चाष टी कमी आसे एबे आमर हांडी खत है टी गोबर खत है यहाँ मिसेले माटीर उर्वरता शक्ति टी अधिक होउछि। जलसेचन किपरि सठिक रूपे करा जाई परिबो सेथिपई चाषी मानकु परामर्श दिया जायछि। सेहिपरि जलर अपव्ययता रोकिबाकू आच्छादन पद्धति को आपणैबा पई चाषी मानकु तालीम प्रदान करा जायछि। आम बैगन चाष करिछुं तेने पियाल दउछुं तेने सूर्य किरण नहीं हेबा पानी भी से बेसी दरकार नहीं हेबा चाष भल हिसाब होउछि। ओडिशा रे पनीपरिवार यथेष्ट चाहिदा थिबारु चाषी मानकु एक समय रे गोटिए जमीरु 2 बा ततोधिक फसल उत्पादन करिया पई सचेतन करागला। आम जमी भितर जेन 3-4 चाष करार भितर बैगन करा होउछि मका करा होउछि तार संग साग करा होउछि धनिया करा होउछि बेले काଣା होउछि कि बैगनटा लेट न होउछि मकाटा हमर आगे जाउछि तार संग काଣା भी होउछि मूलछड़ाटा कंट्रोल हो जाउछि मूलछड़ा मका लगेले मूलछड़ाटा कंट्रोल हो जाउछि सेतिले हम 3-4 चाष करि पारुछु। आर जेन हुड़ा साइड ने जेन हुड़ा अच्छे आम सजना फजना गच लगे तेने भी किसी हमके पैसा मिल पारुछि गोटे फसल नष्ट हो गले भी आर फसल मिलुछि आर नष्ट होले भी आर गोटे किसी शाक खावा लगे किसी मिल पारुछि सेतिले हम 3-4 चाष करि पारुछु। एठार उत्पादित पनीपरिबा गुड़िकु श्रेणीकरण तथा वर्गीकरण करा जायथाय। या द्वारा पनीपरिबार मान निर्धारण होई परिथाय। चाषी माने निजर उत्पादित पनीपरिबाकु बाजार रे बिक्री करिबा फल रे लाभवान होई पारुछन्ति। मो माँ माहेश्वरी करला गाँव पनीपरिया आनी भवानीपाटना रे बिक्री करूँ। सेहीपरि पनीपरिबाकु 5 ରୁ 7 दिन सतेज रखिबाकू घरे घरे स्वल्प खर्च रे बिना शक्ति रे शीतल भंडार मान प्रस्तुत करा जायछि। आमे पनीपरिया तुली करी आनी करी रखले 7 दिन पर्यंत सतेज रही करी रहिसी। फसल अमल समय रे बिहन संग्रह पई किछि फसल को गछरे चिन्हट करा जाई संपूर्ण पाकळ हेबा पर्यंत छाड़ी दिया जायथाय। उपयुक्त समय आसिले याकू गछरु संग्रह करी आनी ता भितरु मंजी को जत्नर सह बाहर करबाकू पड़िथाय। एटा देसी बिहन एटा के नहीं करी सुखा सुखी करी हाथे रमदी करी पाछड़ी दी करी ताके कोना उठके बांधी देमु आर रखिथिमु आर बुनला बेलके ताके विशोधन करी करी बुनमु। दुकान बिहन आनले खराब बिहन दउछन पुरनाटा गछ नहीं हेबा हेति लगी आमे देसीटा हम निजे अमल कर। मंजी गुड़िक संग्रह कर सारा परे सेगुड़ी को किपरि भल भाव संरक्षण कर रखा जाई परिबो सेथिपई चाषी मानकु सचेतन करा जायछि। चाषी माने संगृहित बिहन को विभिन्न उपाय रे संरक्षण कर रखि पारुछन्ति। मंजी के आनी करी आमे ताके बाहर करसु मंजी सुखाई दी करी लीम पतर फुटका डाल दी करी नुआ डोला गुटे आनी करी सेने गोबर लिपि करी भर्ती करसु आरो कीड़ा नहीं खाए बोली करी ताके नहीं के भितरे भरी करी ऊपर लिपि देसु। माध्यम फाउंडेशन रो एही सफल उद्यम आज चाषी मानकर आर्थिक अवस्थार परिवर्तन आनिबा सह चिरंतन कृषिर विकास होई पारिछि।